Hi guys, welcome or welcome back to Lockery. How are you all doing? How's the जोश? कल पेपर है आप सबका, तो अच्छा जोश होना चाहिए, हाई होना चाहिए, एंथुजियाज्म पूरा का पूरा हाई होना चाहिए। और अभी हम डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्लैट 2022। यस, ये वीडियो मैं इसी टाइम पर डालना चाहती थी, बिल्कुल लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ताकि आपके दिमाग में रिवाइज हो जाए। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, मिस्टेक यू शुड अवॉइड, मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी होती है बट अटेम्प्टेशन में गलती कर जाते हैं, तो अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट से। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी क्लास 2022 aspirant should watch this video. It is a very important video. If you are a Logarian, please do watch this video. Let's get started with today's session. Some important decisions you need to make when it comes to attempting the paper. Yes, there are certain important decisions that you need to take before you attempt the paper. नहीं तो वहां पर जाके you will be confused, confusion हो जाएगी वहां जाके। बट तुम एक लॉकरियन हो तो तुम कंफ्यूज तो हो नहीं सकते, तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। यू शुड हैव द क्लैरिटी दैट हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जाम and please plan on paper. This plan needs to be created right now if you have not created. How to attempt the paper, we are going to discuss which are those questions that you have to answer. वो कौन से questions हैं जो आपको आंसर करने हैं वो भी बात करने वाली। In which sequence you will attempt the sections, this is very very important. Question number 1 is in which sequence you are going to attempt the sections. Now there are two strategies, I've already shared them with you. Number 1 is first a heavy section, then a light section, then a heavy section, then a light section. You can go by this, or the section which you are good at first, a section which is scoring for you, a section which boosts your confidence. Okay, you can go this way. Mostly students they attempt English first, or then they go for GK, then they go for legal or logical, and after legal or logical, whatever they have done first, then they'll go for the second one, and at the end they go for maths. This is very very important that on paper today you decide that in which sequence, what should be your sequence. Your sequence can be very very different also. You can go for legal first, maybe because you think it is very strong, and I would say that go for a subject that doesn't take much of your time, because it should not be that time is the time that is left is less, but you've just completed some sections. So keep that in mind, create a plan. It is very very important. If you have good speed with legal, you can go for that first, then maybe you can follow it by GK, then you can go for English or logical, whatever. It should be on paper that you need to decide. And before you enter the examination hall, or before you leave for the examination hall, just हैव अ लुक, अपने पेपर को देखकर जाना एक बार लास्ट टाइम जब आप घर से निकलोगे। वन इज हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग, हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर। look, you cannot attempt questions unendingly. You cannot, you have to keep a count. आपको काउंट रखना पड़ेगा। अनएंडिंगली अटेम्प्ट करोगे तो बाद में पता चलेगा कि आपके स्कोरिंग अच्छी हो सकती थी बट आपके नेगेटिव मार्क्स ही सारे मार्क्स खा गए। ये बात याद रखना, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर रॉन्ग आंसर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आई हैव टोल्ड यू अ जिलियन टाइम्स। फॉर एग्जांपल, दीज आर द 3 क्वेश्चंस, A, B, C, D options. Right, now for one first question, I know that B is not the option, C is not the option, D is not the option, A is the answer, I know. But in the second question, I know that A is not the answer, C is not the answer, but I'm confused between A and D. Then there is a third question, I know that A is for sure not the answer, but I'm confused between B, C, D. Now these type of questions are my 100% वाले questions, राइट। ये तो मैं सॉल्व करूंगी। ये मेरे कौन से बनेंगे, 50-50, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑप्शंस में से क्रॉस आउट हो पा रही हैं, 2 में गैस मारूंगी मैं, और एक है जिसमें मुझे 3 ऑप्शंस में से गैस मारना पड़ रहा है। ये वाले क्वेश्चंस मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगी, ये वाले क्वेश्चंस मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगी। ये वाले क्वेश्चंस मैं तभी अटेम्प्ट करूंगी अगर मुझे लग रहा है कि किसी भी हालत में मुझे कोई भी NLU नहीं मिल रहा। अगर मेरा स्कोर 40-50 तक ही रह रहा है और मुझे दिख रहा है कि मुझे कोई NLU नहीं मिलेगा, इवन 60 तक रह रहा है, तो मुझे पता है मुझे कोई NLU में एडमिशन नहीं मिलने वाला, तो गैसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज, नो वाइल्ड गैसिंग। अगर आपका स्कोर 90, 100,
85 to 90 भी जा रहा है, तो मैं नहीं कहूँगी कि आप वाइल्ड गेसिंग करें, बिकॉज इसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ कॉलेजेस मिल सकते हैं। नाउ इट डजंट मीन कि अगर आपका 85 to 90 स्कोर जा रहा है या 100 जा रहा है तो आप वैसे ही क्वेश्चंस लीव आउट क्वेश्चंस। नो, आपको क्वेश्चंस छोड़कर नहीं आने, आपको अपने 100% मतलब आपको ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, बट आपको नेगेटिव मार्किंग भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके। एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड देन अराइव एट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, तो एलिमिनेशन का मतलब ABCD है, तो मैं क्रॉस आउट करूंगी। रीड ऑल द ऑप्शंस, सारी ऑप्शंस पढ़े, ABCD। कई बार होता है हम एक ऑप्शन पढ़कर टिक कर देते हैं, बट आंसर तो बाकी सब ऑप्शंस में था, तो सारी ऑप्शंस पढ़कर आंसर देना है और नेगेटिव मार्किंग दिमाग में रखनी है। ओके, जो एक और चीज है आपको रखना है, आपको दिमाग में रखना है, मान लो आपका 100% वाला क्वेश्चन है, टिक की जगह मे बी आप उसको स्टार मार्क कर दो। ठीक है ना, टिक कर स्टार मार्क कर दो कि ये मेरा 100% वाला है, टिक मार्क कर दो। जो 50-50 वाला है, कुछ ऐसी निशानी रखो सो दैट यू कैन कीप अ काउंट कि मेरे 100% वाले कितने हो गए हैं और मेरे 50% वाले कितने हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए आप अपनी रफ शीट जो आपको लास्ट पे मिलेगी वहां पर भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो। ठीक है, बट यू हैव टू कीप अ काउंट कि कितना क्या बन रहा है। कीप इन माइंड व्हाट यू शुड कीप इन माइंड, व्हाट वाज द कट ऑफ इन 2021। अब क्या सेम कट ऑफ जाएगा दीदी? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कट ऑफ होगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि सेम हो, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट हमें अपने दिमाग में रखना है कि देखिए अगर 100+ आते हैं, 100+ स्कोर करते हैं, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर मुझे बहुत आराम से एडमिशन मिल जाएगी। 90+ में मैं यहाँ तक 90+, 95+, 90+ में भी मुझे यहाँ तक एडमिशन मिल रही है। NLU जोधपुर 90+ में भी मुझे यहाँ तक एडमिशन मिल रही है। 85+ अगर मैं जा रही हूँ, 85 to 90 अगर मैं स्कोर कर रही हूँ तो मुझे ये वाली एडमिशन्स मिल रही हैं, ये वाले मिल रहे हैं। 80+ जा रही हूँ तो पटना मिल रहा है। अगर 75+, 75 to 80 की रेंज रख रही हूँ तो मुझे ये सारे इंस्टीट्यूट्स मिल सकते हैं। मतलब अगर 80, 90, 100 स्कोर मिल रहा है और आपको लग रहा है हाँ पेपर जैसा 2021, 2022 के अंदर, सॉरी 2020, 2021 के अंदर था वैसा ही है, तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई NLU मिल जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। अगर पेपर बहुत इजी आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आ गए, ये गलती नहीं करनी। बच्चे ये गलती कर आते हैं, आपको अपना बेस्ट करना है, आपको अपना बेस्ट करना है। समझ में आ गई? You will give to each question। एक और क्वेश्चन जो आंसर करना है वो हाउ मच टाइम यू विल गिव टू ईच सेक्शन। ईच सेक्शन को कितना टाइम? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 25 से 30 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स दे सकते हो। लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड 25-30 मिनट्स, क्रिटिकल रीजनिंग 25-30 मिनट्स। देखिए आप प्लस माइनस कर सकते हैं यहाँ पे, बट अपने पेपर पे डिसाइड करिए कि कितना टाइम देना है। मैथ्स को 15 मिनट्स, जर्नल नॉलेज को 12 मिनट्स में करने की कोशिश करना, बिकॉज जनरल नॉलेज एक ऐसा सेक्शन है जो आप पैसेज पढ़े बिना भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस कुछ क्वेश्चंस में ही पैसेज पढ़ना होता है, नॉर्मली बिना पैसेज पढ़े आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। ये बात दिमाग में रखना। सेक्शन वाइज ट्रिक्स एंड टिप्स की बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्टिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जब सॉल्व कर रहे होगे, ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस ही पढ़ने हैं। फटाफट क्वेश्चंस में देखो कि क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर दे आस्किंग, व्हाट आर दे आस्किंग, ये देखो एंड फिर पैसेज पढ़ने लग जाओ। इससे आपको एक माइंडसेट मिल जाएगा। 10 to 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं लेने सारे क्वेश्चंस पढ़ने में, और फिर आ जाओ पैसेज पे। रीड द पैसेज, गेट एन आइडिया व्हाट यू हैव टू रीड इन द पैसेज, व्हाट यू हैव टू सर्च। ठीक है ना, तो एक इजी चीज हो जाती है जब ऐसे सॉल्व करते हो। देन कम बैक टू द पैसेज एंड ऑल्सो वाइल रीडिंग द पैसेज अंडरलाइन। अगर लग रहा है कि हाँ यहाँ पे आंसर मिलेगा क्वेश्चंस का, तो पैसेज को अंडरलाइन करो। ये पैसेज के अंदर अंडरलाइन करो। ये ऑल सेक्शंस में आप कर सकते हो। क्लैट के लिए ऑल सेक्शंस के अंदर करना है कि क्वेश्चंस का आइडिया लेकर फिर पैसेज पे जाओ और पैसेज में अंडरलाइन करो। आफ्टर रीडिंग द पैसेज कम टू द क्वेश्चंस एंड रेफर बैक टू द पैसेज व्हेन रिक्वायर्ड। अब बहुत बच्चे समझते हैं एक बार पैसेज पढ़ लिया हमने, रेफर बैक नहीं करना, बट रेफर बैक करोगे जब जरूरत है, ऑब्वियसली रेफर बैक करोगे पैसेज को। मार्क एनीथिंग स्पेसिफिक आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ट्रू या फॉल्स पूछा है, अगर क्वेश्चन में टोन ऑफ द पैसेज पूछी है, अगर क्वेश्चन में अजम्पशन पूछा है, आर्ग्यूमेंट पूछा है, ये वहां पे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये पूछा है और फिर आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे क्या अपने दिमाग में रख के आंसर करना है। फॉर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन रीड वन लाइन। ऊपर की यहाँ पे वोकैबुलरी का वर्ड है तो
तो पूरी लाइन ये पढ़ो, अगली लाइन पढ़ो, उससे पिछली पढ़ो, तब आप इजीली गेस कर पाओगे आंसर वोकैबुलरी वर्ड का। और उसके अंदर एलिमिनेशन करके आंसर पे अचीव करना, एलिमिनेशन कर कर आंसर करने की कोशिश करना। लीगल रीजनिंग की बात करें, मार्क द एसेंशियल्स ऑफ द लॉ प्रोवाइडेड इन द पैराग्राफ। ठीक है, इतना बड़ा पैराग्राफ है, यहाँ पे कहीं लॉ दिया हुआ है तो लॉ को मार्क करो। ठीक है ना, कि क्या लॉ प्रोवाइड किया हुआ है, लॉ को मार्क करो। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है उसको भी मार्क करो। ठीक है, इफ प्रिंसिपल नॉट प्रोवाइडेड क्लियरली देन मार्क द लॉ इन द पैसेज, रीड द क्वेश्चंस ओनली नॉट द ऑप्शंस। अगेन यहाँ पे भी क्वेश्चंस पढ़ने के बाद अगर पैराग्राफ पढ़ते हो तो इजी रहोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने सिर्फ ओल्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करें तब भी कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ ढूंढना है पैराग्राफ में से, और फिर अपना जो पुराने वाले क्वेश्चन में करते थे वही करना है। मैथ्स के अंदर आपको नीट कैलकुलेशन करनी है। रीड इट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल, यू माइट नीड इट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल, तो कैलकुलेशन नीट करनी है। जो रफ शीट है वो एंड पेपर के एंड में कुछ शीट प्रोवाइड करी होंगी वही है, साथ में आप अलग से नहीं लेकर जा सकते। करंट अफेयर्स में यू कैन स्किप द पैसेज एंड डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चंस, ओनली टू आंसर सम क्वेश्चंस यू नीड टू रीड द पैसेज। जैसे 1 मेंशन करा होता है, 2 मेंशन किया होता है, उसमें वो कहते हैं बताओ 1 का क्या है, वहां पे क्या होना चाहिए था, तब आप पैसेज पढ़ोगे। नहीं तो बस एक थोड़ा बहुत आइडिया लिया पैसेज का, फटाफट से स्किम किया, स्किम भी सिर्फ 10 सेकेंड्स में किया, और फिर फटाफट क्वेश्चंस पे आ गए। पहले क्वेश्चंस पे आओ कि क्वेश्चंस अगर आंसर होते हैं तो हमें पैसेज नहीं पढ़ना है। जीके के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर और लीगल लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी मार्क कर लो कि क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, फिर पैसेज पढ़ो। ओके, यूजी क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, क्लैट का फॉर्मेट एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। 150 मार्क्स के आपका पेपर है, 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। 28 टू 32 क्वेश्चंस इंग्लिश में आएंगे, करंट अफेयर्स में से 35 टू 39 आएंगे, लीगल में से 35 टू 39, लॉजिकल में से 28 टू 32, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जिसको हम मैथ्स और डीआई बोल सकते हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे, 13 टू 17। ठीक है, समथिंग यू नीड टू टेल योर सेल्फ बिफोर द एग्जाम, कुछ चीजें जो आप अपने आप को बताकर जाने वाले हो, बहुत ध्यान से सुन लो। यू आर गोइंग टू टेल दीज थिंग्स टू योर सेल्फ। नंबर 1, there are going to be questions of which you know the answer and there are going to be questions of which you don't know the answer. Please पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आपको नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे पैनिक मोड में चले जाओ। ठीक है, उसके बाद इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन यू डोंट हैव टू गेट एंग्शियस और पैनिक, डोंट। अब यहाँ पे क्या करना है, आपकी वाइब क्या रहेगी, अगर कुछ नहीं आता तो कुछ आता भी है। ठीक है, जो आता है मुझे उस पर ध्यान रखना, आई नो सम आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे पता है, मैं उस पर फोकस करके उनको एज अ मोटिवेशन यूज करूंगा, ना कि जो नहीं आते उनकी टेंशन लूंगा। ये सोच लेकर चलनी है, माइंडसेट चेंज करोगे आज रात को। डोंट स्टिक टू क्वेश्चंस, इफ अ क्वेश्चन इज टेकिंग मोर देन द यूजुअल टाइम देन यू नीड टू स्किप। देखिए, ये क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस जो होते हैं या जान पूछकर डाले जाते हैं आपके टाइम वेस्ट करवाने को, तो इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप जितना टाइम क्वेश्चन पे यूजुअली लगाते हो उतना लगाया, बट नहीं सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। आप इसको मार्क कर लो, अगर टाइम मिलता है तो वापस आके सॉल्व करना, नहीं तो रहने दो। ओके, if the paper is difficult it is difficult for everyone and if it is easy for everyone, don't get panic। बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर जो होता है वो डिफिकल्ट आ जाता है और बच्चे वहीं पर गिव अप कर देते हैं, वहीं पर गिव अप कर कर आ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती, मिस्टेक। देखिए, बहुत बच्चे वहां पर बोलेंगे कि अरे ये तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, अरे ये तो पेपर डिफिकल्ट है, ऐसी भी वाइब वहां पे आपके एग्जामिनेशन हॉल की बन सकती है। बट आपको क्या सिखा कर भेजा है मैंने बार बार, इन सच अ सिचुएशन यू नीड टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। देखिए, वहां पे रोना धोना नहीं है, यू डोंट हैव टू क्रिब और क्राई, यू नीड टू बी अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। यू नीड टू टेल योरसेल्फ दैट आई विल फिगर इट आउट, I have to figure it out. I'm a Logarian. I don't have any other option except to figure things out for myself. एक्शन करना है, वहां पे अपने दिमाग को काम करना है और सोचना है, आस्क योरसेल्फ व्हाट बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ, find that one section or question or passage that you think you can solve. When done with one, find another. आपको लग रहा है ये सेक्शन जो है ये बिल्कुल ही बेकार है, इन्होंने सही ढंग से नहीं डाला, आउट ऑफ सिलेबस है, ये सब कुछ कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्लैट में कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। बहुत सारे लोग आकर केसेस करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनकी एडमिशन हो जाती हैं। जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होता है उनको एडमिशन दे देता है क्लैट, और वो लोग अच्छे लॉयर्स, बड़े बड़े लॉयर्स बन जाते हैं। तो यही सोचना है कि व्हाट आई शुड डू, how can I perform my best, how can I give my best, that is what you have to think there। रोने धोने नहीं बैठना।
क्रिब नहीं करना, गिव अप तो बिल्कुल ही नहीं करना है। नो एंजाइटी, नो वरी, ओनली डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग विल पावर टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है ना। अपने दिल पर हाथ रख कर जाना कि यार लॉगिरियन हूँ, अच्छे से पेपर देकर आऊंगा। अगर तुम अच्छे से पेपर देकर आते हो, 100% देकर आते हो, मेरी आंखों में तुम एक विनर हो, और मैं बता दूं कुछ ना कुछ जिंदगी में करोगे ही। तो इसलिए वहां पर डिसीजन मेकिंग पावर रखनी है अपने दिमाग में, डिसीजन लेना है और प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, रोना नहीं है। वेन एवर पैनिक, एंजाइटी, वरी, शॉक, इरिटेशन इज देयर, जब भी इरिटेशन, शॉक, ऐसा कुछ होता है, रिप्लेस द थॉट विद टू थिंग्स। यू शुड सिंग दिस और स्पीक दिस इन योर हेड अगेन एंड अगेन। आई हैव टू गिव माई 100%, आई हैव टू गिव माई 100%, 100%, 100%। कैसे दे सकता हूँ 100%? वेन एवर इन अ प्रॉब्लम, आस्क योर सेल्फ वॉट बेस्ट आई कैन डू। सबसे अच्छी चीज मैं क्या कर सकती हूँ इस टाइम पे सकता हूँ, वो करो। तभी उस सिचुएशन के अंदर सोचो व्हाट बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ। गिव अप तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। आई हैव टू गिव माई 100%, व्हाट बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ, ये वाइब रखनी है। योर माइंडसेट शुड बी टू फाइंड सोल्यूशंस, नॉट टू गिव अप, बी इट अ स्मॉल प्रॉब्लम और अ बिग प्रॉब्लम। ये दिमाग में रखना है, क्या होना चाहिए, सोल्यूशन ढूंढना है। इफ द इंटायर पेपर, अ सेक्शन, some questions, some paragraphs are not the way that they are supposed to be, you should not give up. Instead, you should have a mindset that what best I can do right now. Decide quickly with a calm mind, take action, be a problem solver, not a loser. Simple. वहां पे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ ही मान लो बहुत डिफिकल्ट आ गया, सबके लिए आया ना, तुम्हारे लिए तो नहीं, स्पेशली पेपर सेट, क्या सबके लिए आया ना, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार? डिफिकल्ट आ गया तो कुछ ढूंढो जो तुम्हें आता है उसको करो, फिर ढूंढो जो तुम्हें आता है फिर उसको करो, फिर ऐसे ही मोस्टली पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। Looking at others and thinking they know everything or they have solved more questions than me, ऐसा बच्चे कर कर आते हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत बच्चे पेपर सॉल्व कर कर आते कि दीदी मेरे को एंजाइटी तब हो गई थी, तब मैंने गिव अप कर दिया था, जब मेरा साथ वाला जो भैया जी बैठे थे वहां पर, उन्होंने अपनी OMR शीट पे सारे क्वेश्चंस आंसर किए हुए थे, तो मुझे लगा टॉप तो यही करेगा, और एक ही सीट है क्लाट में, है ना, एक ही सीट है क्लाट में, है ना, हम सब एक ही सीट के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर क्या पता वो गैस मार रहा हो, क्या पता वो गलत कर रहा हो, तुम्हें कैसे पता वो सही कर रहा है? तो तुम अपने क्वेश्चन पेपर, अपनी OMR शीट, अपने क्वेश्चन पेपर पे फोकस करो। वैसे ही टाइम की कमी चल रही है, तो क्यों देख रहे हो, क्यों अपनी नेक उठा के इधर उधर मंडरा रहे हो? फोकस ऑन द पेपर, फोकस ऑन इट, यू हैव टू फोकस, इधर उधर नहीं देखना है। Bonus tips. Number 1, read the question and the options very carefully. True बोला है, false बोला है, assumption पूछी है, tone of the passage पूछा है, argument पूछा है, weak argument पूछा है, strong argument पूछा है, पूछा क्या है। Number 1, ये पता होना चाहिए। Number 2, read all the options. Very important. Mark the thing that is asked in the question so that you know what you are supposed to answer. बहुत इंपॉर्टेंट। फिल द OMR शीट साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। बहुत बच्चे क्या कहते हैं, 5 क्वेश्चंस के साथ साथ भरते, ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर बाद में आके रोगे। मार्क नहीं करते साथ साथ, वो OMR शीट खाली ले जाते हैं। दीदी सॉल्व तो कर लिए थे, OMR में नहीं मार्क करे, तो क्या करूं? OMR में आंसर आना चाहिए। Fill the OMR sheet side by side. Know when to complete the jump to the next question. OMR कैसे बननी है इंस्ट्रक्शंस में डिस्कस किया है मैंने, उनको जाकर देखो, इंस्ट्रक्शंस को देखो। All your fears and phobias should be left at home. All your fears and phobias should be left at home. Go with confidence and positive attitude to give your best. Give your 100%. However, this is not the end. However, this is not the end of the road. There are many more options. There are many more options. I've discussed all of them in the motivation video. If you have not seen that, please watch that. It is the need of the hour. I'll leave the link in the description box. This is a message that my dad has given for you. This is a message he said, tell the kids. You should tell them that this is the reality of life. Give your 100% so that there is no regret. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल बाद, 10 years बाद, when someone is asking you क्लैट दिया था, तो पूछा हाँ दिया था, बट पेपर में डर गया था। नहीं, पेपर अच्छे से देकर आया था, ये निकलना चाहिए। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ओनली गिविंग 100%. And when in problem asking the question what best I can do right now, ये कर डाला तो you are a winner for me.
यू आर अ विनर फॉर मी। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, तुम मेरे लिए हमेशा विनर्स रहोगे। बस गिव अप मत कर आना एग्जाम में। जितना पढ़ा है उसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर सॉल्व कर आना, अपना 100% देकर आना। अगर तुम अपने 100% देकर आते हो, गिव अप नहीं करते हो, तुम मेरे लिए एक विनर हो। हम कुछ ना कुछ जिंदगी में जरूर अचीव करेंगे। वील अचीव द बेस्ट इन आवर लाइव्स, दैट इज फॉर श्योर। आप क्लास क्लियर करते हो नहीं करते हो हार्डली मैटर्स। what matters is giving 100% and not giving up also। कोई भी एग्जाम के बाद आकर टेंशन नहीं लेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। वी आर गोइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन कि आप आगे क्या कर सकते हो। मैं आपके मैसेजेस का हमेशा रिप्लाई करती हूँ, इसी वजह से करती हूँ कि कोई भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट। तो इसलिए बस टेंशन फ्री होकर 100% देकर आना है। मैं बता रही हूँ, मैं आप लोगों से बहुत बड़ी हूँ और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस यही कहता है कि ये एंड नहीं है लाइफ का। लाइफ में आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी आई है, इसको अच्छे से क्रैक करने की कोशिश करो, ठीक है। दैट्स दैट। लॉगिरी साइनिंग ऑफ। आई सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो। एक और सेशन लेंगे हम फटाफट से। दैट्स इट, लॉगिरी साइनिंग ऑफ। आई सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा ही होगा यार, जो होगा टेंशन मत लो। बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल।